मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، عزیز دوستو، اس کی جو لائٹ ہے لائٹ بند کر دو، پھر آنکھوں کو لگتی رہنا۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم سب کے اوپر کہ اس رب نے ہم سب کو جمعے کا دن مرحمت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 7واں مہینہ رجب کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رجب کا مہینہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، اور رجب کی آج 9 تاریخ ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کے تقریباً 50 دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے رجب کے مہینے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جس دن کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی 12 مہینے شمار کی ہے۔
یہ 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے، یعنی لوح محفوظ میں یہ چیز اللہ رب العزت نے درج کرا رکھی ہے کہ اب دنیا جو کائنات میں نے بنائی ہے اس کائنات کے اوقات سال میں 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے مہینے ہوں گے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، اربع کہتے ہیں 4 کو عربی میں، اور حرم کہتے ہیں حرمت والے، یعنی ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عظمتوں والے مہینے ہیں۔ عظمت والے مہینوں میں یہ 7واں مہینہ سال کا، اور 3 مہینے وہ ہے جو لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پھر 6 مہینے گزرنے کے بعد 7واں مہینہ رجب کا آتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے سے 1 مہینہ قبل آتا ہے۔ اس مہینے کے بڑے بڑے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں معراج فرمائی ہے۔ شب معراج جس کو کہتے ہیں، یہ نماز کا تحفہ اسی مہینے میں ملا تھا۔ جس نماز کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ نمازیں اللہ رب العزت نے اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے لفت جگر اور عبد المطلب کے نور نظر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان کی سیر کرا کے اور پھر عرش پر بلایا۔ روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا خوشی میں۔ اللہ کا عرش جس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وہ عرش بھی جھوم اٹھا، اور جبریل نے کہا اب آگے نہیں جاؤں گا، اگر میں آگے 1 انچ بھی آگے بڑھا جل کر راکھ ہو جاؤں۔ جو سب سے بڑا فرشتہ، جس کا 1 قدم مشرق میں 1 قدم مغرب میں، اتنا بڑا فرشتہ یوں کہہ رہا ہے اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھا اس کے بعد اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہے معراج کا، جو اس مہینے میں رجب میں ہوئی ہے۔ اور پھر کیا باتیں ہوئی وہاں پر، کیا ملا وہاں سے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، اللہ نے سلام کیا اپنے پیغمبر، اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلامتی ہو اے نبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے جب سلام کیا تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے اوپر تو آپ سلام دے ہی رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے نیک بندوں پر بھی سلام کی بھیج دے اللہ، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اے اللہ انہیں بھی سلامتی دے دے۔ یہ لے کر آئے تھے ہمارے لیے، جس کو آج ہم چھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیاریاں کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے وہ تیاریاں شروع کر دی، یا ابھی تک ہم غفلت میں؟
उस गफलत की चादर को हटाने के लिए और रमजान मुबारक के महीने की अहमियत को बिठाने के लिए आज का ये हमारा प्रोग्राम है। ये जुम्मे के दिन जो आपको बात बताई जा रही है, तो एक तो ये वाकया है रजब के महीने का। एक वाकया वो है कि सबसे पहली हिजरत मुसलमानों की जो हबशा हुई है, जो अफ्रीका का एक मुल्क है हबशा, जिसको आज दूसरा नाम दिया जाता है, उस वहां से जो बादशाह था, वहां की जो ममलिकत थी, वहां की जो सल्तनत थी, वो नज्जाशी बादशाह जिसका ये लक़ब था, वो बड़ा रहमदिल नरम दिल आदमी था। तो सबसे पहले हिजरत मुसलमानों की मदीना नहीं हुई, ये तो दूसरी हिजरत है। पहली हिजरत हबशा में हुई है। और इस हिजरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फैमिली के साथ गए हैं। और यूं फरमाया, जैसे मेरे दादा इब्राहिम ने फैमिली के साथ हिजरत की थी, इसी तरीके से मेरे दामाद ने फैमिली के साथ हिजरत की है। जो सबसे बड़ी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, वो आपके साथ गई है। ये बड़ा वाकया है। और तीसरा वाकया, इस महीने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। उनकी विलादत रजब के महीने में हुई। तो रजबुल मुरज्जब का महीना बड़ी बरकतों का, रहमतों का महीना है और बड़ी फजीलतों का हामिल है। रजब के महीने का एहतराम मजहब इस्लाम से पहले गैर मुस्लिम भी किया करते थे। इस महीने का एहतराम इतना एहतराम था कि अगर लड़ाई जोरों पर है, तलवारें खिंची हुई है, मुकाबला होने वाला है सुबह को, और रात में अगर रजब का चांद नजर आ गया तो सुबह लड़ा नहीं करते थे। इतना अदब और एहतराम रजब के महीने का। किनके यहां? अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, और हम मुसलमान होकर के इस महीने, इन महीनों का अदब और एहतराम नहीं करते। हम मुसलमान गफलत में, और उस वक्त के गैर मुस्लिम भी इस महीने का अदब और एहतराम किया करते थे। कभी कभी ऐसा हुआ करता था, क्योंकि गैर मुस्लिम थे, कभी कभी ये कहा करते थे कि अब रजब का चांद अगर नजर आ जाया करता था तो आपस में बैठकर मशवरा कर लिया करते थे, और यूं कहा करते थे कि अब के बाद रजब का महीना शाबान के बाद आएगा। पहले शाबान आ जाएगा और फिर उसके बाद रजब आएगा, फिर रमजान आएगा। बदल दिया करते थे। मालूम नहीं था ना, बदल दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल विदा, तो उस हज में यह फरमाया था, मैं आखिरी महीने में हज कर रहा हूं, इसके बाद जो महीना आएगा फिर वहां से अपने महीनों की तरतीब सही कर लेना। अब बदलना नहीं है। अब मजहब इस्लाम में महीनों को नहीं बदलना है। जो महीना तरतीब के साथ बता रहे हैं उसी तरतीब के साथ रखना है। तो ये तो मजहब इस्लाम की देन है कि महीनों की तरतीब सही है, कोई आज बदलता सदलता नहीं है। नहीं तो मजहब इस्लाम से पहले महीनों को बदल दिया करते अपना मतलब निकालने के लिए। तो रजब का महीना इतना बरकतों का और फजीलतों का महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में क्या तैयारी किया करते थे रमजान की? मैं और आप तो ये समझ रहे होंगे कि रमजान की तैयारी 2 महीने पहले शायद ये क्या करते थे कि कपड़े नहीं तो कपड़े ले लिए, और भाई दूध का इंतजाम नहीं तो उसके लिए इंतजाम कर लिया, इफ्तारी और सहरी का इंतजाम नहीं तो वो इंतजाम कर लिया। ये तो समझ रहे होंगे। नहीं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तैयारी नहीं किया करते थे। इस महीने में रमजान मुबारक की जो 2 महीने तक तैयारी थी, वो ये तैयारी थी कि रजब के महीने में रोजे रखा करते थे, अपने आप को तैयार किया करते थे। रजब के महीने में रोजे रखा करते थे, अपने आप को रमजान मुबारक के रोजे रखने के लिए तैयार किया करते थे, आदत बनाया करते थे कि कहीं ऐसा ना हो एकदम से रोजे रखने की वजह से तबीयत खराब हो जाए और रमजान मुबारक के महीने के रोजे छूट जाए। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में और शाबान के महीने में रोजा रखा था। और वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारा साल ही रोजे का मामूल था, हर पीर और जुमेरात को रोजा रखा करते थे। आज हमारे यहां ये चीजें, ये सुन्नतें आज हमारे यहां नहीं रही है, लेकिन औरतों में आज भी मौजूद है, बाज औरतों में आज भी मौजूद है कि पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा इसलिए रखा करते थे कि पीर और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला के यहां बंदे के आमाल पेश होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे कि मैं इसलिए मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में इस हाल में पेश हो कि मैं रोजेदार हूं। तो पीर और जुमेरात को रोजा रखा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें भी ये सुन्नत जिंदा करनी चाहिए, पीर और जुमेरात को रखने। वैसे तो इस महीने में कसरत से और शाबान के महीने में कसरत से रखा करते थे। और दूसरी तैयारी क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तैयारी ये क्या करते थे कि दुआ करते थे। इस महीने में कौन सी दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। और ये दुआ इसलिए क्या करते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमजान मुबारक के महीने से पहले दुनिया से चले जाते हैं। रमजान मुबारक के महीने से पहले दुनिया से चले जाते हैं, ताकि वो अगर इस दुआ को मांग रहे हैं और दुआ पढ़ रहे हैं तो एक तो ये फायदा होगा, अगर वो दुनिया से रमजान मुबारक के महीने से चले गए तो उन्हें आने वाले रमजान के रोजों का, तरावी का और जो दुआएं हैं उन सब का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत फ्री में उसके नामाए अमाल में चढ़वा देंगे। ये फायदा होगा दुआ मांगने से। तो अरबी में याद करो, अरबी में याद नहीं करते तो उर्दू में, ए अल्लाह हमें बरकत अता फरमा रजब और शाबान के महीने में, ए अल्लाह इन बरकतों के साथ मुझे रमजान तक पहुंचा दे। ये दुआ थी। तो अगर अरबी में याद नहीं कर सकते तो उर्दू में याद कर ले, और उर्दू में जिस तरह मैंने बताई है इस तरीके से याद कहना। पांचों नमाज की दुआओं में से किसी एक नमाज की दुआ में, पांचों नमाज में अगर मौका मिल जाए तो पांचों नमाज में कह ले। इससे फायदा यह होगा, एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत अता फरमा देंगे रमजान के लिए, एक रमजान मुबारक के महीने के रोजे आपके लिए आसान हो जाएंगे। दूसरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आपने पिछले रमजान में रोजे नहीं रखे गए थे और नहीं रखे थे तो इस साल अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुआ की बरकत से आपको रोजों की तौफीक अता फरमा देंगे। तीसरे, एक रमजान मुबारक के महीने के जितने भी काम हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आसान कर देंगे आपके लिए। जो इखराजात है रमजान मुबारक के महीने में, खा किसी भी एतबार से हो, इस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उन इखराजात को इन 2 महीने में आपकी जेब में पहुंचा देंगे। यह फायदा होगा इस दुआ के पढ़ने का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो 2 तैयारियां थी, मैंने आपके सामने वो बयान किए। उन 2 तैयारियों में से एक तैयारी क्या? कसरत से रोजे रखा करते थे। तो अगर हमारे में हिम्मत हो, ताकत हो तो 1-2 रोजा हफ्ते में, महीने में रख ले